Students, now in the next part of the algebraic identities, and that is the factorization of algebraic expression of the form of x square plus qx plus r. Factorization of algebraic expression of the form x square plus qx plus r. We have learned already 5 identities. Okay, so here we are factorization of algebraic identities in the form, what type of form is x square plus px plus r. Okay, and this is quadratic polynomial. We have done already 5 different identities, in which the first identity a plus b whole square, there is 2 terms of square. Now in this last video we have seen x plus a into x plus b as x square plus a plus b x and plus ab, or x square plus ax plus bx plus ab. So don't you think this expression is in the form of this one? There is a term x square, there is term some multiple of x, and a constant. AB is also constant. So in order to factorize this, we have to express p as the sum of two numbers such that their product is r with sign. That's all. If you are able to do this, you can do easily. Just like I am thinking about that x square plus 9x plus 18. Now think of two numbers whose product is plus 9, whose sum is plus 9 and product is 18. Okay, here if my computation skill is strong, you will find that 9 can be expressed as 6 plus 9 can be expressed as 6 plus 3, as well as 18 can be expressed as 6 into 3. So this expression now can be written down as 6 plus 3x, 6 into 3, 18 as 6 into 3, 9 as 6 plus 3. Do you think we are here? And if we are here, what is the factorization of this one? This is x plus a into x plus b. So this is x plus 6 into x plus 3. And that's the answer. So next topic is our factorization. Mind it, here the coefficient of x square is 1 only. If the difficulty level is raised, coefficient may be other than 1. Then what we have to do, this is some higher order thinking skill, HOTS question. So you have to not mention here. Further I will discuss it. Now just think about one. I have taken one example, now take the another one. Minus 4x minus 45. Now here those two terms are negative. Now think of two numbers whose product is minus 45. Product is minus 45. Now product agar minus में हो तो one is positive and second one is negative. We'll see minus 45 is minus 15 into 3, minus 9 into 5, okay, minus 45 into 1 also. Different way you can write it. But at the same time you have to see the numbers. Numbers are A and B. Numbers are A and B. You have to think about that their sum must be equal to minus 4. So what do you see here? Here minus 9 plus 5 is minus 4. So we have A as minus 9, B as plus 5. X square, write down plus, bracket minus 9 plus 5 into x, and then plus minus 9 into 5. Here A is minus 9, B is 5. X square plus A plus B x plus A into B. It means A plus x plus A. Here A is minus 9, so we should write down minus 9.
and b is plus 5, so x plus 5. So this is the answer. So what do we see? We are required to find the product of the constant such that the sum of these two factors must be equal to coefficient of x here. ठीक है? Since the coefficient of x square is 1, so we have to find only. Now मैंने अभी कहा था कि अगर x square का coefficient other than 1 यानी मान लो 2 हो जाए, in that case what you have to do, then this formula is not applicable, then we are going to take some common. So फिलहाल अभी हम लोग इसी को करते हैं क्योंकि आपका सारा कंसंट्रेशन इसी में है, एक्सरसाइजेज वगैरह. Yesterday we have done before in the previous video you have done exercise 5 and 6. Now we are left with exercise 7 only, in which you will get 16 questions plus value based question 1, 2, then brain teasers 1A, B, and 15 question in brain teasers and 2 HOTS. So, and this way we can say the end of the chapter algebraic identities. I hope you are doing well. One more thing, I just find that there are some students missing the class, they are not added in the group. So if you find there are some who are left or not added, please try to get them added. Now very first question of worksheet 7. Previously I think yesterday I have loaded the video, but you will get the assignment first, then after you get the, in afternoon when I saw that the video is not there, an assignment already given, so don't do that one. I hope you are not doing. The first question is x square plus 14x plus 33. One more question I am going to take, x square minus 8x minus 65. One more question, p square minus 5p minus 6. Here p is variable, here x is variable, and etc. One more I am going to take, let it be y square plus y minus 132. So these 4 examples. Okay. The first one, think of a number, product of 33, 33, 3 into 11, only factor I can get, or one more, 33 into 1. Now here clearly 3 plus 11 is 14, 3 plus, so the A and B are 11 and 3, or 3 or 11, you can take any or. So we write down, what is the 14 can be expressed as the sum of 3 and 11. 3 and 11. So we will get 14x, okay. And the next 33 can be written as 11 into 3. So what we get? We get the identity x square plus a plus bx plus ab. So write down the answer as x plus 11 into x plus 3. सिंपली ये फैक्टराइज हो गया, 2 लीनियर फैक्टर में हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है फैक्टराइज हो गया. नाउ द नेक्स्ट वन, अगेन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1. द r that is ab minus 65. 65, do you find 65 in any table? Yes, in 13. It is 13 into 5. Since it is minus 65, so it is minus 30 into 5 or 13 into minus 5. They are primes, 65 into 1. No, but what is this term? It is minus 8. So if you look very carefully, you will find the sum of minus 13 and 5 is minus 8. So here a is 13 x square
A is 13, B is plus 5. What is minus 13 plus 5? It is minus 8. That is 8. And then write down AB. AB is minus 13 into 5. So, do you think we arrived at some identities that x square plus a plus bx plus a into b? Yes, you are. So write down x minus 13 since a is minus and b is plus, so x plus 5, and that's your answer. Okay, सांस ले लो. अब चले आओ थर्ड क्वेश्चन में. Here variable is p. Don't worry, p को x की तरह समझ के हम लोग काम करेंगे. Now constant term is your ab. ab क्या है आपके पास? -6. अब इसको दो फैक्टर में a इंटू बी में सोचिए. जैसे मैं सोच रहा हूँ अभी, इसको थोड़ा सा देख लीजिए कैसे सोचा. -6 इंटू 1. कोई कहेगा नहीं सर 6 इंटू -1. ओके, आप सोचो. दूसरा का नहीं सर 3 इंटू -2. तीसरा का नहीं सर -3 इंटू 2. आप सोचते रहो. इन सभी का प्रोडक्ट जो है अभी क्या आ रहा है? -6 आ रहा है. वैसे आप 12 इंटू -1/2 भी कर सकते हो, बट अभी चूंकि p का कोफिशिएंट 1 है और इधर सारे के सारे नंबर इंटीजर्स हैं, इसलिए भी हमें फ्रैक्शन पार्ट को नहीं सोचना है. नाउ व्हाट इज योर a प्लस बी? तब जो x वाला टर्म होता है यानी p यहाँ पर है, वो हमारा दिया हुआ है -p 5. अब इसमें से इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, add these two, what do you get? -6 plus 1 is -5. Here +6 minus 1 is 5. 3 minus 2 is 1. -3 plus 2 is -1. We need -5, so this factor is allowed. है ना? -6 and 1. Here a is -6, b is 1. So write down p square plus -6 plus 1p and plus -6 into 1. And your answer will be that p minus 6, p is here in the place of x, and p plus 1, they are multiplied. P minus 6 into p plus 1, and that is your answer. Is it? Now next question. It is y square plus y minus 132. Here AB is large. Okay. And ध्यान रहे. अब एक बात और समझ लीजिए आप. जब भी यहाँ पर टर्म्स निगेटिव में हो तो एक नंबर प्रोडक्ट जो होगा उसमें से one factor is positive and another one is negative. अब इसमें हमेशा जब दोनों को जोड़ेंगे तो एक्चुअली क्या होगा, वो हम लोग वहाँ पर करेंगे सब्ट्रैक्शन ही मान होता है. मतलब एक माइनस टर्म हो और एक प्लस टर्म हो तो क्या होता है, एक्चुअल बड़े नंबर से छोटा नंबर घट जाता है, कम हो जाता है. अब हमें बीच में क्या लाना है? y मतलब y का कोफिशिएंट है 1, +1 लाना है. तो ऐसे दो फैक्टर को सोचें जिनको जोड़ने से +1 हो जाए. नंबर थोड़ा बड़ा है तो इनके फैक्टर 132 इंटू 1 होंगे, तो इनको जोड़ने से कुछ खास नहीं होगा. हमेशा देखो जब माइनस होगा तो बड़े में से छोटा घटा देना. 130 इंटू 1, 132 से 1 गया 131, ये तो 1 चाहिए हमें. ओके, नेक्स्ट वन इज 66 इंटू 2. 66 में से 2 घटाएंगे तो 64 आएगा, ये भी नहीं चलेगा. ओके, सोचते सोचते हम पहुंचते हैं 12 और 13. यस, नो सॉरी, 12 और 13 से तो काम नहीं चलेगा, 12 और 11 से काम चलेगा. यस, 12 के टेबल में 11 टाइम माइनस है तो इसमें से एक प्लस और एक माइनस होगा, एक प्लस और एक माइनस होगा. बीच में हमें जो बीच वाला टर्म है, ए बी वाला टर्म है, वो 1 है. एक्चुअली क्या है यहाँ पर? 1 है प्लस में, तो बड़े वाले को प्लस रखिए और छोटे वाले को माइनस, सो दैट अगर हम -11 + 12 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? +1. सो नाउ a is -11, b is 12, और a is 12, b is -11. So the factorization is y square plus -11 plus 12
y and then minus 11 into 12. थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ठीक रखना होगा ये 11 into 12 लाने के लिए. तो what we get, y minus 11, that is x plus a, y plus a के जगह यहाँ minus 11 है और b के जगह 12 है, and that is your answer. So this is these are 4 questions from exercise worksheet 7. You can do others. I am going to give you as assignment. Now think about the value based question. Value based means there is some value. Value means जो हम लोग के अंदर का जो एक मोरल होता है कि जैसे हम चोरी नहीं करनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, है ना, अच्छे काम करने चाहिए. These are the values. तो इन क्वेश्चंस सम वैल्यूज मस्ट बी गिवन. जैसे क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, इन द वेकेशंस गौतम परचेज x² plus 8x minus 20 game CDs while Sanyam purchased x plus 4 whole square game CDs. Who purchased more CDs and by how much? किसने ज़्यादा खरीदा और कितना ज़्यादा खरीदा. Then write any one advantage and one disadvantage of playing video game. अब जब आप वीडियो गेम खेलते हो तो उसके कुछ एडवांटेज आपको मिलता होगा, उसमें से एक एडवांटेज लिख दीजिए. कुछ डिसएडवांटेज ही मिलता होगा. जनरली हम लोग तो उसको डिसएडवांटेज ही कहते हैं. आँख खराब हो जाएगा, तो IQ लेवल डाउन होगा, एक्सेट्रा. तो फर्स्ट, अब ये जो क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन बेस्ड भी हो गया कि एक के पास x² plus 8x minus 20 गेम सीरीज़ है, तो हम लोग दूसरे का x plus 4 का होल स्क्वायर है. पहले हम उसको फैक्टराइज कर लेंगे. x² plus 8x minus 20. तो what you find, x² plus 8x minus 20. Just like we have done all the 4 questions, minus 20 is 10 into minus 2, which sum is, the sum of these two is plus 8. So I am going to write down that 10 minus 2x minus plus minus 10 into 2. Sorry, minus 2 plus 10 into minus 2. So what we have, x plus 10, x minus 2. Now Gautam has this much, x plus 10 into x minus 2, and Sanyam has x plus 4 whole square, that is x plus 4, x plus 4. Now here you find, कह रहे किसके पास कितना ज़्यादा वीडियो गेम है. अब ये पता लगाना आपको काम है कि x plus 10 into x minus 2 में और x plus 4 into x plus 4 में बड़ा कौन सा है. अगर हम पुट करते हैं यहाँ पर x की वैल्यू थोड़ी देर के लिए 0, तो ये तो निगेटिव आ जाएगा पहला वाला 10 into minus 2 और हो जाएगा 6. लेकिन चलिए अगर हम पुट करते हैं x की वैल्यू 2, तो 2 में गौतम 0 हो जाएंगे. चलिए 2 से थोड़ा सा बढ़ते हैं, 3 रखते हैं, x की जगह 3 रखते हैं, तो 3 plus 10 13 और 3 minus 2 is 3. What you find that x plus 4 whole square, ये x को -4 रखेंगे. सब भाई x इज अगर नंबर ऑफ सीडीज होगा, कुछ ना कुछ वेरिएबल होगा, तो 0 भी रखेंगे तो ये 16 हो जाएगा. तो परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नेवर टू गोइंग टू बी निगेटिव. बट ये निगेटिव हो सकता है. जैसे यहाँ x की वैल्यू अगर हम 2 से बढ़ा दें 4 रख दें तो ये निगेटिव हो जाएगा. तो निगेटिव क्वांटिटी इज, यहाँ पर आप 3 रखो, यहाँ पर 3 रखो, ये बड़ा हो जाएगा. यहाँ पर 0 रखो तो भी ये बड़ा ही रहेगा. यहाँ पर आप 1 रख दो, 11 minus 1 निगेटिव और ये 25. यहाँ पर 2 रख दो, ये 0 और ये 36. यहाँ पर 5 रख दो तो ये 15 और ये 3. 15 3 जा 45 और ये 5 plus 4 9 का स्क्वायर इट इज़ 81. तो कह रहे हैं कि ये ज़्यादा है. ये कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा जो है उसमें से आप कम वाले को घटा दो. ना यहाँ पर आप करना क्या, किसको बाइनोमियल के टर्म में घटाना. व्हाट इज द x plus 4 a plus b whole square, it is a square plus 2 into a into b and plus b square and minus, ये तो बाइनोमियल में दिया ही, ट्राइनोमियल में दिया ही हुआ है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में सॉरी,
ऐसे लिखेंगे. सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ब्रैकेट तोड़ते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x एंड प्लस 20. सो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया. आंसर क्या बचा? 36. आंसर क्या बचा? अच्छा, हम लोग अभी रख रहे थे, जैसे 0 रख रहे थे तो यहाँ -22 हो रहा था और यहाँ 16. तो यस, 16 जो है -20 से 36 ज़्यादा है ही. सो 36, संयम हैज़ 36 बुक्स मोर देन गौतम. और फिर आप क्या करो, डिसएडवांटेज और एडवांटेज लिख दो, वन मोर. ओके, so this is some type of value based question. Now there is next part 1a, it is multiple choice question. Multiple choice question, very easy. First one कह रहा है the factors of 1 minus 6z plus 9z square. Do you think it is a perfect square? Can I express as any identities? सोचो. 1 can be written as 1 square, 9z square can be written as 3z whole square, and 6z is 2 into 1 into 3z. So it is a minus b whole square. 1 minus 3z whole square. 1 minus 3z whole square नहीं है, 3z minus 1 whole square है. ये भी चलेगा. अगर हम इसको थोड़ा सा उलट के लिख दें, 9z square minus 6z plus 1, it can be written as, देखिए, 1 minus 6z plus 9z square be written as 9z square minus 6z plus 1. 9z is 3z whole square minus 2 into 3z into 1 and plus 1 is 1 square. So what we have, 3z minus 1 का whole square. अच्छा, एक चीज़ और आप जान लो ये माइनस के होल स्क्वायर में, कि whether it is a minus b whole square or it is b minus a whole square, they are both same. Why? इसका एक्सप्रेशन देखो बेटा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, और उसके हिसाब से इसका एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 2ba प्लस ए स्क्वायर है. देखो यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी बी स्क्वायर, यहाँ भी बी स्क्वायर, यहाँ माइनस 2ba, बी ए को b इंटू ए को a इंटू बी भी कह सकते हैं, 1 इंटू 3 या 3 इंटू 1 एक ही चीज़ है. तो -2ab और सेम, सो इक्वल. और दूसरे तरीके से अगर थोड़ा सा एडवांस तरीके से आप सोचो, कैन आई राइट, क्या हम इसके बीच में माइनस कॉमन ले लें तो ये a माइनस बी हो जाएगा, और फिर स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस, सो वी आर लेफ्ट विथ a माइनस बी होल स्क्वायर. सो 1 माइनस 3z का अगर होल स्क्वायर किसी को समझ में आ जाए और ऑप्शन में दिखे कि नहीं, वो तो वहाँ पर है ही नहीं, लेकिन आपको उसका जस्ट उल्टा दिखाई दे, 1 माइनस जेड के जगह 3 माइनस जेड दिखाई दे, तो आपको सोच लेना चाहिए कि यही मेरा आंसर होगा. ठीक ना. द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज, देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर, हमने एक बार कहा था ना कि स्क्वायर टर्म कभी भी पॉजिटिव निगेटिव नहीं होगा, तो ये तो सीधे सीधे आप काट दो, ये भी सीधे सीधे काट दो. यहाँ पर होने का है, यहाँ भी ए माइनस बी स्क्वायर का टर्म माइनस है, कट गया, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे. फॉर्मूला नहीं भी याद होगा तो लास्ट में यही समझ में आएगा कि यही आंसर है. तो ऐसे भी a माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. नाउ कम टू द थर्ड ऑप्शन, वाई स्क्वायर. देखिए ये कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी के फॉर्म में है. तो a 3 है और b 1 है, 3 इंटू 1 3. तो क्या होगा, ये x प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 1. यस, दिस वन, y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 1. बाकी के लिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ, है ना, किस तरह से ऑब्जेक्ट देखना है हमें. आइए पार्ट बी में. पार्ट बी में कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग बाय यूजिंग सम सुटेबल आइडेंटिटी. ओके, वन क्वेश्चन हम लोग इसको करते हैं, देखते हैं कि हम लोग कर पाते हैं कि नहीं. पहला क्या दिया हुआ है, a प्लस 3 a माइनस 3 a स्क्वायर. देखिए यहाँ मैं कर रहा हूँ a प्लस 3 a माइनस 3 a स्क्वायर प्लस 9 यूजिंग आइडेंटिटी. ओके, दिस पार्ट यू सी that a plus b into a minus b, a plus b into a minus b is a square
माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज है? चलिए है, यहाँ कोई आइडेंटिटी नहीं है। अब ये क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस 9, 3 स्क्वायर मीन्स 9, ए स्क्वायर प्लस 9। लो, ये फिर से एक आइडेंटिटीज आ गया, ए माइनस बी, ए प्लस बी। व्हाट डज इट मीन? अगेन इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए की जगह ए स्क्वायर है दोनों में, बी की जगह बी स्क्वायर की जगह 9 है, नहीं 3 स्क्वायर है। ए स्क्वायर सॉरी ए की जगह ए स्क्वायर है, बी की जगह 9 है, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए टू द पावर 4 माइनस 81। सो दिस इज पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर ए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, इसका निकालना है। ओके, सोचिए क्या करेंगे। मैंने सोचा कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 6 दी गई है और निकालना हमें x की पावर 4 प्लस, तो हम इसको स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग। तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इधर भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड कर दिया। नाउ लेफ्ट हैंड साइड को आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, ए प्लस बी होल स्क्वायर में तोड़ दो। इट्स ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी इज 1/x स्क्वायर, एंड प्लस बी स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू व्हाट, 36, 6 का स्क्वायर 36। नाउ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इट इज x4, यहाँ पर न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में स्क्वायर कैंसिल, सो प्लस 2। 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इट इज 1/x4, और राइट हैंड साइड में हमारा 36 है ही। अब हमें निकालना क्या है भाई, हमें निकालना है x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4। हमारे सोल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड में x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 है, तो हम इसको लिखते हैं इधर। और क्या नहीं होना चाहिए, ये 2, तो 2 को भेज देते हैं दूसरी तरफ 36 के तरफ जाके 2 क्या हो जाएगा, माइनस। सो 34 इज द वैल्यू ऑफ this one, and that the answer. This is the part B of small second question of part B. क्लियर है? इस तरह और भी क्वेश्चन आप देखो, दिखाई दे रहा होगा। सी में क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दिस वन, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, है ना, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, ए बी भी दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, ओके। फिर सी में दिया, ई में दिया हुआ ए प्लस बी प्लस सी, गिवन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, गिवन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सो ओके, वी आर गोइंग टू डू सम मोर क्वेश्चंस। मैं ले रहा हूँ इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है 9, ए बी दिया हुआ है 4, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड 3 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, ओके। सबसे पहले तो क्या करते हैं कि जो आइडेंटिटीज़ है उसको तोड़ते हैं। क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब फिर ब्रैकेट को और एक्सपेंड करते हैं, 3 इंटू ए स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6ab, मल्टीप्लाई ठीक से करना सभी में, ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म में ये 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। 3 इंटू बी स्क्वायर 3b स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, माइनस 2 इंटू माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस 4ab, प्लस माइनस का हमेशा ध्यान रखेंगे, माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर इट इज़ माइनस 2b स्क्वायर। नाउ लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर, फिर 3b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर, फिर तीसरा लाइक टर्म है 6ab प्लस 4ab, सो इट इज 10ab। यहाँ पर अक्सर बच्चे जो है लाइक टर्म नहीं समझ पाते हैं, सबको जोड़ देते हैं, 3 6 9 3 12ab स्क्वायर लिख देंगे स्क्वायर, दैट्स रॉन्ग। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
it given to be 9. So write down 9 plus 10 into AB. What is the value of AB? It is 4. So 10 into 4. So 10 into 4, 40 plus 9 is 49 is the answer. So there are some questions, and I think you have to do also some question, since in virtual class I am not in the position to check you whether you are doing or not, because there is no response in this class. क्लास 8A के बच्चों ने अभी तक मैथ्स में एक बच्चे ने रिस्पांस दिया कि सर कॉपी क्या करेंगे, है ना, बाकी किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया है, ठीक है ना। सो इन द नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वही आप पीछे जो वर्कशीट 6 तक पढ़े हो उसी का एप्लीकेशन है। एक क्वेश्चन और कर ले रहा हूँ मैं ये, उसके बाद कि a प्लस बी प्लस सी इज़ गिवन 12, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ गिवन 64, फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, आप किसी ऐसे आइडेंटिटीज़ के बारे में सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट दैट आइडेंटिटीज़ in which you find a square plus b square plus c square as well as the term containing a b b c c a। तो अगर हमें आइडेंटिटी सारे याद होंगे तो हमें तुरंत दिमाग में आएगा कि यस देयर इज़ एन आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जिसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन तीनों से 2 कॉमन नज़र आ रहा है, 2 को हमने कॉमन लिया तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके बराबर, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। नाउ इससे अब देखो ये हमें मालूम 12 का स्क्वायर, ये हमें मालूम क्या 64, ये हमें नहीं मालूम, कोई बात नहीं मालूम तो नहीं मालूम, अब तो मालूम हो जाएगा। What is 12 स्क्वायर 144, 64 को इधर ट्रांसपोज कर लो माइनस 64 इस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। नाउ व्हाट इज 144 माइनस 64, आई थिंक इट इज 80, और इस 2 मल्टीप्लाई किया हुआ तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सो द आंसर इज दैट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज 40. So this way we have done few questions today. So right from starting just recall what we have studied. The first one a plus b whole square, जो क्या था a square plus 2ab plus b square था। फिर a minus b whole square वो क्या था a square minus 2ab plus b square। तीसरा हमने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो क्या था, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं। चौथा हमने पढ़ा था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो अभी अभी लिखा हमने ये, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू प्लस ए बी, या एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इस पर हमने इस वे में अगर कोई दिया हुआ था तो ऐसे लिखा, और अभी अभी आज जो हमने किया वर्कशीट 7 का वो इस फॉर्म में दिया हुआ था, दैट इज़ फैक्टराइज ऑफ ए पोलिनोमियल विच इज़ इन द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर। इसका फैक्टराइजेशन हमने सीखा। फिर हमने वर्कशीट 7 में जो ब्रेन टीचर थे उसके कुछ क्वेश्चंस किए, और कुछ क्वेश्चंस आप रेडी रहो, आपके लिए तैयार है। जैसे ही आप एक चैप्टर ख़त्म करेंगे उसके अगले दिन मैं वही सब दूंगा, उस दिन वही लेसन रहेगा, आपको सारा वर्कशीट करना है। हो जाएगा आपसे तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो आई होप कि यू कैन आस्क मी, यू विल आस्क मी अबाउट योर डाउट्स। अदरवाइज जैसा चल रहा है वैसे तो चल ही रहा है, आप देख ही रहे हो। अभी तक तो आपने कुछ पूछा नहीं। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, हमने पढ़ा स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। फिर थर्ड पार्ट हमने डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन पढ़ लिया, और उसके बाद डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन के बाद हम लोग चौथे चैप्टर में हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में, है कि नहीं। तो चौथा
चैप्टर चल रहा है और देयर इज़ नो रिस्पॉन्सेस फ्रॉम योर साइड। फिर भी मेरे तरफ से कोशिश जारी है, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। फिर देखते हैं स्कूल खुलने पर क्लासेस का क्या होता है, किसको मिलता है। मेरे पास रहेगा, मैं पढ़ाऊँगा ही। ओके, वेल एंड गुड, थैंक यू, बाय बाय।